ہر گھر میں فیملی پروگرام لازمی ہونا چاہیے، اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ایک آرگنائزڈ ہو، کھانے کے میز پہ ہو، عام بیٹھے ہوئے اس پہ ہو، لیکن تنظیم کے لیے یہ ضروری ہے کہ امام حسن بنا رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ فرد ہے، فرد کے بعد فیملی. اسی لیے اخوان میں جو اسرا سسٹم ہے یہ بہت مضبوط سسٹم ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ جب بھی اسرائیل غزہ میں حملہ کرتا ہے گھروں کو کیوں تباہ کرتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ گھروں کو کیوں تباہ کرتا ہے؟ چلیے فیکٹریز تباہ کرنا ہے اور آفیسز اور مختلف، گھروں کو اس لیے تباہ کرتا ہے کہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ یہ جو اسرا نظام ہے نا یہ بہت مضبوط ہے، یہ جو سپورٹ سسٹم ہے یہ بہت مضبوط ہے، اور یہ سپورٹ سسٹم یہ تنظیم میں اس لیے آتا ہے کہ لوگ ملیں جلیں، اپنی فیملیز کو مضبوط کریں اور پھر فیملیز کے درمیان جو انٹریکشن ہے اس کو مضبوط کریں. دیکھیے میرا اور آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار ناروے میں نہیں ہے، تو ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ فلسطین کے لیے کیوں چندہ دیتے ہیں؟ آپ بوسنیا کے لیے کیوں چندہ دیتے ہیں؟ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے، نکسن امریکن پریزیڈنٹ تھا، اس نے طریقے اسلامی پہ لکھا، حیران ہو جائیں گے. اس نے کہا یہ بہت عجیب طریقے، یہ لوگ بہت عجیب ہیں، یہ اتنے عجیب ہیں کہ الیگزینڈریا میں کوئی جو ہے نا سنیز کرتا ہے، چھینک آتی ہے، اور قائرو میں جو ہے نا یرحمک اللہ کی آواز سنائی دیتی. یہ آپ اس لیے کہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پشاور میں آواز آتی ہے اور اس کی لبیک کراچی میں ہو رہی ہے. اب اس لیے سمجھ لیں، اس نے کہا کہ یہ اتنے منظم اس انداز، اور یہ منظم اس لیے ہو سکتے ہیں کہ آپس میں محبت، اخوت، اور یہ ایک لازمی چیز ہے طریقے اسلامی کی اسٹرینتھ کے لیے. آپ ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا. اختلافات ہوں گے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ہر گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ بیٹے کو باہر نکال دیتے ہیں، بیٹی کو باہر نکال دیتے ہیں، یہ میری بات نہیں مان رہا. آپ اس مسائل کا حل کر لیں، حل ڈھونڈتے ہیں نا. اگر حل نہیں ڈھونڈیں گے تو پھر مسئلہ ہی نہیں، پھر مسئلہ. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے لیے یہ 40 منٹ اردو میں بولنا میں سمجھتا کافی مشکل تھا، تو جو اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور میں آپ سے معذرت کہہ رہا ہوں. اگر کوئی چیز آپ نے سیکھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. یہ تھے محترم ڈاکٹر افتخار حسین صاحب جو ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ ہماری اجتماعیت کیا ہوتی ہے اور ہمیں کیسے اجتماعیت کے ساتھ چلنا چاہیے. ابھی کچھ تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے، اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں جو محترم ڈاکٹر افتخار حسین صاحب سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اپنی جگہ پہ ہاتھ کھڑا کیجئے تاکہ ان سے بات کی جا سکے. جی محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے یہ گزارش کرنا، سوال نہیں ہے کہ آپ کو محنت تو کرنی پڑی، آپ اردو میں ہی کیا کریں. ماشاءاللہ. تحریک اسلامی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس زمانے میں، مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ پوری انسانیت ہے. اور اختلاف جیسے آپ نے کہا وہ تو ہوتے ہی ہے، لوگ آتے ہیں ٹوٹتے ہیں نکل بھی جاتے ہیں، لیکن جو بات میں پوچھنا چاہتے ہیں نوجوان بھی ہے ماشاء اللہ، سخت ماحول میں بھی رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ خواہ وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، تحریک اسلامی کو جو سب سے بڑا خطرہ درپیش ہے وہ ہے کہ جنریشن گیپ کی وجہ سے نئی نسل ہماری اپنی بہت اچھی تربیتوں کے بعد بھی
वो तहरीक का हिस्सा बड़ी तादाद में हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। इसका कोई इलाज या कोई इस पे काम जो सवाल है वो मौलाना महबूब साहब की तरफ से यही है कि जो हमारी जनरेशन गैप है और जो नौजवान है वो तहरीक का हिस्सा क्यों नहीं बनते। असल में एक चीज़ तो आपको एक चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी कि तहरीक इस्लामी का काम आसान काम नहीं है। ये अगर आप चिल्ला काट लें 3 दिन इधर उधर कर लें तो वो आसान है, आपसे कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन तहरीक इस्लामी का काम आसान नहीं है। आप पूरी दुनिया की मिसाल ले लें तो आप टारगेट, यू आर इन द फायरिंग लाइन, ख़तरा कहाँ से आ रहा है। हालांकि हमने दहशत गर्दी को कभी तस्लीम नहीं किया। आप तहरीक इस्लामी की तारीख को देख लें, सिवाय एक वाक़या जो सीरिया में 1982 में हुआ था जब कुछ लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी, हवा में हुआ था, कुछ याद आप कुछ लोगों को याद होगा। और उस वक़्त हाफिज़ असद ने 30,000 लोगों को एक बस्ती में मारा था, जो आज तक 1982 की बात है, 18 और 15 33 साल बाद वो जो एरिया वो नो गो एरिया, उसने रिबेलियन एक कुचल दिया था। लेकिन ये लाजमी हुआ तहरीक इस्लामी। तहरीक इस्लामी जो है ना, ये काम मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं है, ये आसान भी नहीं है, इसलिए कि आप एक मुकम्मल तब्दीली चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तब्दीली हो हर लिहाज से। ये नहीं कि मेरी नमाज ठीक नहीं है तो मैंने जो है ना नमाज ठीक करनी है या 10 सूरतें याद करनी है, इस तरह की तब्दीली नहीं है। मुकम्मल तब्दीली इसलिए कि हम अदल और इंसाफ देना चाहते हैं ना। और कुछ गलतियां हमारी तरफ से ये हो सकती हैं कि हम अपने मैसेज को जो है ना एक अट्रैक्टिव वे पे नहीं बोला है। ये भी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि इस मैसेज को क्या कहते हैं, रीब्रांडिंग कैसे की जाए, रीमार्केट कैसे किया जाए, इस मैसेज को कैसे रीब्रांडिंग और रीमार्केट किया जाए। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाज़ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी है। तो ये सिर्फ मतलब आपकी नहीं, ये तो हम ये तो हमारे जो इख्वान के साथी हैं वो भी इस पे इस तरह सोचते हैं, जो बांग्लादेश के साथी हैं वो भी इस तरह सोचते हैं कि जो न्यू जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन है वो लार्ज नंबर्स में क्यों नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ जिसका इशारा मैंने बयान में भी किया था, वो मैं आपसे भी ये पूछता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ कितना वक्त गुजारते हैं, वो कितना गुजारा है और किस अंदाज का वक्त गुजारा है, किस तरह गुजारा है। ये आप सवाल अपने आप से पूछें कि मेरे बच्चे तो अब माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, यकीन से कह सकता हूँ, कुछ हमारे बुजुर्ग बैठे हुए शायद उनके बच्चों के बच्चे जवान हो रहे हो, ये भी है। लेकिन बच्चों के साथ कितना वक्त गुजारा, बच्चों के साथ क्या, बच्चों को क्या दिया है। मिस्र में जो मैंने देखा कि पूरी जनरेशन तहरीक में, पूरी जनरेशन, शादियां भी वो तहरीक में करते हैं और पूरी जनरेशन तहरीक में, होल फैमिलीज, उनका सेटअप जो है ना वो इस अंदाज का है कि फैमिली हलकात बहुत होते हैं, फैमिलीज आपस में मिलती जुलती में। किसी ने मुझे कहा था कराची में भी कुछ हद तक इस किस्म का सिस्टम है। तो ये तो एक चीज़ है कि मैसेज को जो है ना रीब्रांडिंग की शायद ज़रूरत है, उसको रीमार्केटिंग की ज़रूरत है, इस अंदाज में जो है ना नौजवानों को पहुँचाया जाए। लेकिन माशाल्लाह जब हम यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं ना यूके में, उसमें हमारी रिस्पांस बहुत है, उसमें अच्छी रिस्पांस मिलती है, एक्सेप्टेंस और इस तरह की हमें रिस्पांस अच्छी मिल रही है। बाकी अल्लाह वाला। जी जज़ाकल्लाह। अगर और किसी साथी के ज़हन में कोई सवाल हो तो अब मैं अपने इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रर हमारे इंतहाई मोहतरम मौलाना महबूबा रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ
اور زندگی موت اور موت کے بعد کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں مولانا محترم محبوب الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. وقال سبحانہ وتعالی وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وللدار الآخرة خير. وقال سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. حضرات، ہم اس ایمان کے علمبردار ہیں جس کی 3 بنیادی نقطوں میں سے ایک نقطہ، 3 بنیادی عقیدوں میں سے، عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد آخرت ہے. یہ تینوں مرکزی بنیادی نقطے دراصل ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اس طرح کہ یہ سارے سمجھاتے ہیں کہ اصل میں تو نقطہ توحید کا ہی بنیاد ہے. رسالت بھی توحید کے حوالے سے کہ اللہ کی وحدانیت سکھانا، بتانا، لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانا، اور پھر لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہوئے ان کی ابدی ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے بارے میں لوگوں کو قائل کرنا، مطمئن کرنا، یکسو کرنا اور اس کے لیے تیاری کا طریقہ کار بتانا. تو اصل بنیادی نقطہ تو توحید ہی بنتی ہے، اور پھر آگے ایمانیات کے لحاظ سے جب تقسیم ہوتی ہے تو تیسرا نقطہ آخرت. آخرت اس معنی میں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو اس معنی میں مانا ہے ماننے والوں نے اور ہم نے بھی کہ یہ دنیا مستقل نہیں ہے. اس دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے، جس طرح مردہ دفناتے ہوئے، پہلی مٹی ڈالتے ہوئے جو آیت پڑھی جاتی ہے، 3 جملے ہیں اس کے پڑھے جاتے ہیں، وہ اسی عقیدے کا اعلان ہوتا ہے کہ پہلی مٹھی پہ منہا خلقناکم، اللہ کا تعالیٰ کہتے ہیں اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وہ فیہا نعیدکم، دوسری مٹھی پہ کہ ہم تمہیں اسی مٹی میں واپس لے جا رہی ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی مٹی سے ہم دوبارہ تمہیں نکالیں گے. یہ اس وقت یاد دہانی کے طور پر زندہ انسان اپنے دفنائے جانے والے مردے پر مٹی ڈالتے ہوئے یہ کہتا ہے اور کہنا چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے کہ آج اس پہ یہ کام ہو رہا ہے، کل میری باری ہے. اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ دنیا مستقل رہنے کے لیے ہے نہیں. اسباب کے لحاظ سے ٹھیک ہے جی، غریب زیادہ مر رہی ہیں، فلاں بھوک سے زیادہ مر رہی ہیں، تھر میں پیاس سے زیادہ مر رہی ہیں، کراچی میں ٹارگٹ کے کلر کے نتیجے میں زیادہ مر رہی ہیں. اسباب کی دنیا میں یہ اسباب ضرور ہیں، لیکن جہاں کوئی ایک مچھر تک بھی نہ پہنچ سکتا اور ساری دنیا کے وسائل اور اسباب فیور میں موجود ہوں، وہاں پھر اس آدمی کو تو کم از کم نہیں مرنا چاہیے، لیکن مرتا ہے وہ بھی. اس لیے کہا کہ یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ دنیا ہے کس لیے؟ تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہیں آزمایا جائے کہ ایکم احسن عملا،
कौन है तुम में से खूबसूरत तरीन अमल इस दुनिया में करता है ताकि अगली जिंदगी उसकी समर और सुधर जाए, बस इस इम्तिहान के लिए। वरफा बाज़कुम फौका बाज़िन दराजात लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, दुनिया में एक ही घर में पैदा होने वाले, एक ही निसाब की तालीम हासिल करने वाले, एक ही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिग होके निकलने वाले, एक ही घर की फैमिली के अफराद यकसा नहीं होते। फरमाया कि हर एक में सलाहियत मुख्तलिफ है, जज्बात मुख्तलिफ हैं, सोचें मुख्तलिफ हैं और रिजल्ट भी मुख्तलिफ निकलता है। क्यों है? लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, जिस चीज में जो फर्क डाला हुआ है, खा वो जिस्मानी कुव्वत हो, ज़हनी सलाहियत हो, माली कुव्वत हो, सियासी कुव्वत हो, जो भी है, जिसमें भी है ऊंच नीच रखी हुई है। फरमाया कि ताकि हम हर एक को उसके दर्जे के लिहाज से आजमाएं, फीमा आताकुम, जो उसे मिला हुआ है। जिसके पास जो कुछ है, थोड़ा है तो थोड़ी आजमाइश, बड़ा है तो बड़ी आजमाइश, अकेला है तो अकेले की आजमाइश, और इस तरह की इज्तिमाइयत का जिम्मेदार है तो इस तरह की पूरी इज्तिमाइयत। सवाल होगा, ये दुनिया इसलिए है, और ये दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ आपने बीज डालने हैं और इस बीज का फल आपने वहां आखिरत में खाना है। साया दुनिया में मिल सकता है, लेकिन फल असल में आखिरत में मिलना है। डालना इसलिए कि ये बीज हमने डालना है, इसका साया, इसका फल, इसकी राहतें, इसकी खुशबुएं सारी की सारी हम आखिरत में हासिल करने वालों में शामिल हो जाएं। अल्लाह का करम होगा कि उसके फल में से कुछ हिस्सा या उसका साया या उसकी खुशबू हम इस दुनिया में भी दे दे, तो उसकी मर्जी। लेकिन हम काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आखिरत सुधर और समर जाए, ये बुनियाद बनती है। इस चीज को इंसान पहचान ले तो साथ ही कुरान की ये बात भी, कुल मताउ दुनिया कलील, क्लियर फैसला है, दुनिया की सारी दुनिया के साजो सामान आखिरत के मुकाबले में कलील, थोड़े हैं। और बहुत गहराई में अल्फाज की तहकीक करने वाले, लुगत में खोज लगाने वाले कहते हैं कलील कहते किसके, जरा जरा हम तो थोड़ा माना करके बस कर जाते हैं, लेकिन कहा कि कलील कहते किसको है। एक देहाती ने मुझसे यहाँ सीरिया का, काफी साल पहले सीरिया का एक देहाती आम सा मुसलमान, उसने पूछा कलील किसको कहते हैं। और उसके बाद उसी फैमिली की किसी खातून ने मुझे पूछा कि कलील किसको कहते हैं। मैंने कहा थोड़ा, कहते हैं ठीक है, थोड़ा कमाना ठीक है, लेकिन कलील दरअसल किसको कहते हैं? जो प्याज की जो बारीक झिल्ली है वो, या खजूर की वो दर्ज में से जो फंसी हुई झिल्ली है, उसको कहते हैं। दुनिया की मिसाल ऐसी है समझाने के लिए, दुनिया, पूरी दुनिया, सारी दुनिया के सारे वसाइल आखिरत के मुकाबले में उतने भी नहीं, उतने भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत के हवाले से अल्लाह की नेमतें मांगनी चाहिए, तलब करनी चाहिए, और जन्नत नाम लेके बताया कि अल्लाह से कौन सी जन्नत मांगनी चाहिए? जन्नतुल फिरदौस। लेकिन ये बताते हुए हुजूर ने आपने अपने हाथ की लाठी इस तरह की, कहा कि जन्नत में इतनी जगह भी किसी को मिल जाए तो वो दुनिया और माफिया से बेहतर है, लेकिन तुम अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो। तो दुनिया थोड़ा वक्त है, थोड़ा वक्त। मुझे यहाँ 30 साल हो गई है, आपको 40-45 साल हो गई है। लगता है कि 40 साल हुए हैं तो 30 साल हुए, लगता है। स्वाइस के बाल सफेद हो गई है, टांगे लड़खड़ाने लग गई हैं, दिमाग भूलने लग गया है।
इसके सिवा कोई पता चलता है कि 40 साल हुए? पूरी उम्र कितनी हो गई है? 80 साल वाला भी 80 साल कहलवाना पसंद नहीं करता। हो गए हैं, लेकिन बताओ दुनिया कलील, बड़ी थोड़ी जिंदगी, बड़ी थोड़ी, और इस थोड़ी जिंदगी को अगर लगा दिया जाए, मजे की बात ये अल्लाह की करम नवाजियों से कि इंसान जब भी वापस आ जाए, जब भी सारी जिंदगी जाया करने के बाद भी संजीदगी के साथ, इखलास के साथ, पूरे दिल की सफाई के साथ वापस आ जाए, तो अल्लाह तन्हा यकता यगाना जात है जो नहीं कहती और सारी जिंदगी और सलाहियतें, कुव्वतें वो तो जाया की तूने शैतान के हाथ, और अब वापस, अब तो वैसे भी आना ही था तुझे, किधर आया है? नहीं, अल्लाह नहीं कहता। मौत के हाथ डालने से चंद लम्हे पहले भी कोई वापस आ जाए, कुफ्र से निकल आए तो इस्लाम कबूल, और गुनाहों से निकल आए तो उसकी तौबा। अल्लाह नहीं कहता कि सारी जिंदगी तो तूने मेरी दी हुई नेमतें, सलाहियतें उस अपने दुश्मन के हाथों जाया कर दी और अब कुछ करने का नहीं रहा तो आ गया मेरे दर पर। ऐसा नहीं कहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए कहा, जरा सोच सकते हो, एक आदमी है, बड़ा लंबा सफर उसने करना है, सवारी पे सारा लंबे सफर की प्लान करके उसने सौदा सलब रख के, अपनी जरूरत की हर चीज रख के बांध दिया, और जाने के बाद, बड़ी दूर जाने के बाद सहरा में वो थोड़ा सा आराम करने के लिए जरा सवारी से नीचे उतरा और थका हुआ था, तो नीचे उतरते ही उसकी आंख लग गई। जो ही आंख लगी, सवारी सौदा सामान लेके कहीं दूर निकल गई। बेचारा उठा बिदक के, आंख खुली तो देखा तो सवारी है ही नहीं है। ढूंढा फिरा, इधर उधर चक्कर लगाए, लेकिन सवारी। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह लोगों को मुतासर करने के लिए कोई ना मिसाल देते थे, ना मुबालगा करते थे, ना बात लच्छेदार बनाने को नहीं। हुजूर सच्चे नुमाइंदे थे और सच्ची बात जितनी जरूरत थी उतनी करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो फिर आके फिर मायूस होके आके बैठ गया कि अब फिर सो गया, सवारी तो मिली नहीं है, अब ना सवारी है और ना आगे, क्या करूं? वो सोया है मुड़ के, अब तो शायद मुतमईन होके सो गया, कब सवारी तो मिलनी नहीं है, मैं हूं और मेरी मौत है बस। तो इतने में देखा, जो ही दोबारा उसकी आंख खुली तो सवारी रज के वहां आके गुजाली करते हुए उसके सर पे खड़ी है। हुजूर ने ये मिसाल दे के कहा, तुम सोच सकते हो इस आदमी की खुशी की इंतहा क्या होगी? मायूस हो गया था ना, लेकिन फरमाया कि इस आदमी की खुशी का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह उस बंदे से ज्यादा खुश होता है, इस बंदे से ज्यादा खुश होता है अपने उस बंदे से जो फिर आके दूर दराज जाके वापस आ गया है मालिक के दर पे। अल्लाह उससे ज्यादा इस दुनिया की जिंदगी को अगर थोड़ा समझ लिया जाए, और थोड़ा समझने के बाद, अभी आपने सुना कि अभी सुबह के दर्स में कि 2 कतरे, मियाँ साहब ने अभी बताया, सही बताया, 2 कतरे इंसान के जिस्म से निकलते हैं तो जमीन पे लगने से पहले उस जिस्म की गारंटी ले लेते हैं जहन्नम से बचाव की। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। एक नदामत और पेशमानी का वो कतरा जिसको आंसू कहते हैं, जमीन पे लगने से पहले उस जिस्म की जमानत ले लेता है जिस जिस्म में वो आंख फिट है। कभी कोशिश तो करके देख लेनी चाहिए। क्या हकीकत नहीं है कि हम तो अंदर बाहर जब देखते हैं तो हमारे ऊपर तो खुशी के बजाय मायूसी तारी होने लग जाती है। क्या हम अपने रब से तौबा कैसे करें? ये कमियां हमारी जिंदगी में, अंदर बाहर, इनफरादी इत्तिबाई जिंदगी में, तो अल्लाह से
कैसे मुंह उठा के तौबा करें और माफी मांगे? मायूसी तारी हो जाती है। इसी मायूसी की कैफियत में अल्लाह के सामने अपनी आंखों से एक दो कतरे अगर गिरा दिए जाएं तो अंदर बाहर साफ हो जाता है। अल्लाह के करम को भी सामने रखा जाए, अपनी इस हालत को भी सामने रखा जाए, अपने दावे को भी सामने रखा जाए। तीनों को मिला के इंसान अल्लाह के सामने सर्व सुजूद हो तो फिर अल्लाह से मांगे कि अल्लाह तेरे सिवा कौन है कि जिसके पास हम जा सके, हमें माफ कर दे। थोड़े वक्त को हम ज्यादा वक्त के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए लगा सकते हैं। और इनफरादी और इज्तिमाइयत में ये बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है कि इनफरादी काम आप 100 साल में जो कर पाएंगे वो इज्तिमाइयत के साथ आपका वो काम घंटों में हो जाएगा। इसलिए कि आपने एक काम किया, आपके उस बात पर, आपके उस प्लान पर, आपके उस कहने पर सैकड़ों मर्द और औरतें अमल पैरा हो गए तो वो अपनी अपनी जगह काम करते हैं, वो उनका अजर अपनी अपनी जगह महफूज है। लेकिन आप उस काम में बराबर के 100% शरीक हैं। जितना अजर उनको मिलेगा काम करने वाले सैकड़ों आदमियों को, उतना ही अजर आपको भी मिलेगा। एक आदमी ने प्लान किया, एक आदमी ने राय दी, एक आदमी ने मशवरा दिया, एक आदमी ने झंडा उठाया और सैकड़ों को उस रास्ते पे डाल दिया, तो सैकड़ों जो काम करेंगे, खा वो तहज्जुद पढ़ रही हो, खा वो अल्लाह के सामने आंसू बहा रही हो, खा वो अल्लाह की मखलूक को कोई फायदा पहुंचा रही हो, वो सारे काम में आप शरीक हो जाएंगे। वो सैकड़ों हैं, तो आप कैसे अकेले उतना काम कर सकते थे? इसलिए इज्तिमाइयत का जिस तरह आम सी सादा सी मिसाल से समझा जा सकता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि एक आदमी बहुत ही आजिज़ी के साथ, बड़े प्रेम के साथ परफेक्ट नमाज पढ़ रहा हो, अंदर बाहर उसका साफ उजला हो, लेकिन उसकी नमाज का वो अजर नहीं बनेगा जो हम जैसे अंदर बाहर से लिथड़े हुए बाजमात नमाज पढ़ेंगे। तो जो अजर उस बाजमात नमाज पढ़ने वाले को मिलना है, वो बड़े से बड़े वलीउल्लाह को भी तन्हा नमाज पढ़ने में क्या फर्क है? हालांकि देखा जाए तो हमारे यहाँ तो कम अज कम नमाज में अल्लाह अकबर कह के मुक्तदी बिल्कुल खामोश गुमसुम होके खड़ा हो जाए, रुकू की तस्बीह भी ना करे, तहियात में भी कोई कलमा ना पढ़े, सजदे में भी तस्बीह ना करे, तो उसकी नमाज में जर्रा बराबर फर्क नहीं आता। बिल्कुल उसने सिर्फ इमाम के साथ खड़ा होना, रुकू करना, सजदा करना और तहियात में बैठना है, बस। तो इस नकम्मी हालत में उसको नमाज का अजर कितना मिलना है? 27 गुना। सारा काम इमाम ने करना है, कोई काम नहीं है। आपने नज़म का हिस्सा बनना है, आपके मिलने से जमात बनी है, आप नहीं मिलेंगे तो जमात नहीं होगी। आपके मिलने से जमात बनी। अल्लाह ने आपके मिलने को इतना बड़ा एहसान समझा कि अल्लाह ने आपकी अकेली नमाज का जो अजर देना था वो 27 गुना इसी तरह बात बढ़ती चली जाएगी। इनफरादी नेकी और इज्तिमाई नेकी, इनफरादी तैयारी और इज्तिमाई तैयारी। हाँ ये जरूर है, अजर बढ़ेगा इज्तिमाइयत के साथ, लेकिन आपको जो अजर मिलना है, खा वो 27 गुना मिले या 1 गुना मिले, वो आपकी नीयत पे मिलना है। आपकी आप क्यों आए हैं? अच्छा जी वो इतनी दूर से आए हैं, क्यों आए हैं जी? और जी बस लोग पूछते हैं तो अच्छा वो तो कोई आया ही नहीं है, वैसे ही आ गया ऐसी खाओ। हाँ? आपकी नीयत पे है बाबा, आप दूर से आए हैं, कलुफ्ता से इशा से आप तकलीफ करके आए हैं। नीयत ये है कि मेरा रब मुझे तौफीक दी है, टांगों में सकत है, घर में कोई मजबूरी भी नहीं है,
हमने ही मस्जिद बनाई है, वहां से चला के यहाँ तक पहुंचाई है। तो आज मेरे पास वक़्त भी है तो मैं घर में क्यों पढ़ूं नमाज? मैं औरत तो हूं नहीं कि जिसको इजाजत है। तो अपने रब को राजी करने के लिए अपनी ही बनाई हुई मस्जिद में एक फर्द के इजाफे के लिए मैं वहां चला जाऊं, जमात भी मिल जाए तो और अच्छी बात है। कुरफ्ता कहाँ और गुरुनान कहाँ, जमीन और आसमान की कायनात सारी की सारी गवाह बन गई, दुआ गवाह बन गई, और गुनाह झड़ते चले गए। वुजू करके वहां से निकले तो और ज्यादा गुनाह साफ होते चले गए। यहाँ पहुंचे तो जरा इतने गवाह बना के दिखाए ना अपने हक में। नीयत है तो, और नीयत कोई और है तो सारा मामला ही। एक बात। दूसरी बात ये कि जब